to all of you who have come from far and wide to join us tonight in this international media conference. बहुत सारे हमारे गेस्ट ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से आए हैं, बहुत सारे गेस्ट ऐसे हैं जो कि अब नॉर्थ से आए हैं, कुछ ऐसी की शक्लें हैं मैं देख रही हूँ जो कि लोकल लंदन से आए हैं। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। आज का जो ये इवेंट है इसका ताज ऑफ कोर्स पहनाया जाएगा मुबीन रशीद के साथ, जिन्होंने अकेले एक हाथ से सारा काम संभाला, सारा काम अपने ज़िम्मे लिया और लगे रहे दिन रात ये करने के लिए कि किसी तरह पाकिस्तान का नाम बुलंद हो, किसी तरह लोगों में ये एहसास हो कि जो हम यहाँ मीडिया पे देखते हैं, जो कुछ हम यहाँ सुनते हैं, उन सब चीज़ों के पीछे किन लोगों का हाथ है। जो लोग दिन रात लगे रहते हैं, अपना सारा वक्त अपनी फैमिली लाइफ में वक्त कर देते हैं, इस वजह से कि आप सब हम सब तक वो सारी खबरें दिन रात पहुंचती रहें जो हम बड़े इंतज़ार से ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर से देखते हैं, जो हम बड़े इंतज़ार से अखबार ढूंढ के पढ़ते हैं। This evening tonight is a tribute to all these special people whom we call people of media, the journalists from not just England but also from Pakistan and the world over. And I welcome you to tonight's event. I would also like to thank all the people who have helped make this event successful, and I can't think of a lot of names. So when I say all the people who helped make this event what it is tonight, and hopefully it's going to be a success, I mean all of you as guests who are attending. Some of you might not know who I am. My name is Natasha Sheikh. I'm a councillor from a local political party. I would like to keep this non-political, so I'm not going to mention the name of which party I'm with. I'm sure most of you would know that. We have a lot of people here from England who have asked to speak, to welcome our brilliant journalists and people from media who have done so much, for whom we have planned this night tonight. So to firstly call, could I ask Mr. Mushtaq Ashari to please come and say a few words. When I say a few words, I do mean a few words to Shahid, because I know handing the mic to you means I'm not getting it back. Whoever I call, please kindly do adhere to the 2-minute rule, because I am very particular. I might want the mic back sooner if not. Councillor Natasha Sheikh and myself are from Labour Party, who has elected this year Jeremy Corbyn, the leader of Labour Party, who is a Marxist socialist, and in this country it is first time after 40 years. The last leader we elected was Harold Wilson, who stood for 3 times as a Prime Minister. So Natasha Sheikh, thank you very much for inviting me, and I'm a political activist. So in most educated people, ہمارے وزیر الرحمان شامی صاحب، میں یہاں کھڑے ہو کے کیا بات کروں گا، لارڈ قربان حسین صاحب، میں تو صرف 2 باتیں کروں گا، یہ ہے میری تقریر، تو 2 منٹ نہیں بلکہ 1.5 منٹ میں ختم کروں گا نتاشا شیخ صاحب، چونکہ I'm a trained. Can I welcome مہنور علی، مجاہد بریلوی جس کو میں مجاہد علی کے نام سے یاد کرتا ہوں، جواد احمد شہزاد اوبی، ڈاکٹر سہیل چغتائی، طاہر علی، وینس ٹی وی، اشرف چغتائی، ڈاکٹر جوید شیخ اور تمام وہ لوگ جو پاکستان سے چیز لائے، جناب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، میں سب کو آن بیہاف آف میڈیا کانفرنس یونائٹڈ کنگڈم ویلکم کرتا ہوں. جب مبین رشید سے میری ملاقات کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ہوئی تو مجاہد بریلوی کے تھرو ہوئی، چونکہ یہ بھی نئی بات میں لکھتے تھے
और आजकल नहीं लिख रहे, क्योंकि उन्होंने कहा कि किसी दूसरी टीवी का आदमी लिख नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि आपने ये मीडिया कॉन्फ्रेंस की, पहले लीगल कॉन्फ्रेंस की। मैं तमाम सहाफ़ी भाइयों को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि खबर को खबर रहने दें, हकीकत को हकीकत रहने दें, और जो ट्रुथ है उसको आवाम तक पहुँचाएँ, सेंसेशनलाइज ना करें और सिर्फ खबर को खबर रहने दें और हकीकत को आवाम तक पहुँचाएँ, चूँकि आवाम आपसे भी आगे है। झोंक मलिया तहसील चिन्योद का एक रिमोट गांव है, वहाँ के चौधरी ने मुझे कहा था आज से कई साल पहले कि मुश्ताक लाशानी साहब, हमारी सिर्फ 5 जमातें हैं। आप बहुत पढ़ गए होंगे, लेकिन अगर आप ये 5 जमातें जो एक देहाती झोंक मलिया के आदमी ने, चौधरी ने पढ़ी हैं, ये आप पढ़ लेंगे तो आपको किसी और तालीम की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपको वेलकम करता हूँ और वो 5 जमातें पढ़ने की तकदीर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मुश्ताक अंसारी साहब। 40 seconds over time. But you did well, I must say. कहते हैं, if you hand the mic over to a politician, don't expect it back too soon. If you hand the mic over to somebody from media, don't expect it back at all. Because they like to talk and they like to carry on, and they do. तो मुश्ताक अंसारी साहब दोनों रह चुके हैं, बड़ा एहसान है, इन्होंने बहुत जल्दी माइक हमें वापस दे दिया। मुश्किल थोड़ी आप लोगों के लिए ये है कि मैं पॉलिटिशियन भी हूँ और मीडिया में भी हूँ, तो शायद शाम भर माइक ना छोड़ पाऊँ। I would like to ask my next guest, Sibghatullah Qadri Sahab, MBE. He has an honor from the Queen, of course. He's the first Muslim QC. And if he could come to the stage, of course sticking to the 2-minute rule, and say a few words of welcome, we would be most honored. कोई बात नहीं, वो 2000 आदमी तो हो चुका है, लेकिन आज भी नौजवान है। But you can see he's recovered very well from that, and he still practices to date, mashallah. Natasha, thank you very much. Stroke तो हुआ, अल्लाह ताला ने दिया, अल्लाह ताला के फैसले पे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन इतनी खुशी है मुझे आज कि पाकिस्तानी कम्युनिटी में ना सूरत क़ादरी है, बताया कि किसी से पहले इस शहर की गलियों में मैंने मुजाहरे किए थे, तो साहब पे जो फांसी हुई उसमें मुजाहरे किए थे। इस शहर में कोई उनका फंक्शन नहीं होता है, रेसिज्म था। ये शहर इंतहाई पाकिस्तान और कश्मीर, मैंने भुट्टो साहब से कश्मीर के लिए तो नेशनल दिलवाई थी, पर वो माजी की बातें हैं। लेकिन आज मुझे खुशी है कि दूसरा फंक्शन किया। एक फंक्शन था जिसमें जुडिशल फंक्शन किया था, इसी ऑर्गेनाइजेशन मेरे भाई ने तशरीफ नहीं आया, उसमें कहा था कि मुझे भी अवार्ड दिया। सर आज मीडिया भी उनको आज के फंक्शन में खुश हूँ कि इस शहर में हम पाकिस्तानी दौरे से बुलाते हैं, मैं भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे लोग चले बुलाते हैं। ये हमारे भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई आपके साथ बैठे हुए हैं, ये हैं यहाँ। सवाल ये है, बड़े बड़ा सवाल है खालिद साहब, कि जजों की आज़ादी हो गई, आपकी भी हो गई। एक ज़माने में जब मैं शहर में हंगामे करता था, दौलत का ज़माना था, जब अखबार निकला था और उनके साथ था, वो सारे
फ्रंट पेज पे खबर ही होती थी, वो ब्लैंक पेज होता था, सेंसरशिप होती थी। इससे जो मर गया मेरा दोस्त होता तो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अब आज़ादी है, आपको आज़ादी है, जजों को आज़ादी। मैंने इस शहर में बैरिस्टरों के साथ चीफ जस्टिस के लिए मुजाहरे किए, आज़ादी करा, सुप्रीम कोर्ट को आज़ादी करा, सुप्रीम कोर्ट को आज़ादी नहीं हुई। फिर मैंने गलती की, सुप्रीम कोर्ट नौकरी मिल गई, चीफ जस्टिस को नौकरी मिल गई। आज भी सुप्रीम कोर्ट, आज पहली दफ़े मेरा दिल खुश हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, किसका? एक बेचारा बच्चा 14 साल का जो कत्ल हुआ और दुनिया ने देखा, लेकिन सबने कहा बयान नहीं दिया। तो पाकिस्तान में कोई आज़ादी नहीं हुई है। आप यहाँ बैठे, ये सब बहुत से लोगों से आज मैं मिला हूँ, मैं दिल खुश हूँ। हमारा PFP पर भट्ट साहब बैठे और मेरे मेहमान मेरे दोस्त हैं, सारे लोग हैं। आप भी आज़ाद नहीं, आप कहते हैं अब हम आज़ाद हैं, आप आज़ाद कब थे? नहीं थे। क्यों? क्योंकि कराची में हमारे अल्ताफ भाई के बारे में बोलते, हमारे सलमान मेरा यार, मेरे भाई, मेरे यार का लड़का है, यार भाई का, वो आप आज़ाद नहीं हैं। आपको आज़ाद फौज ने किया, पाकिस्तानी कौम ने किया, और आप जब से आए पाकिस्तान की कौम की हिफाजत करें, पाकिस्तान आपको जो आज़ादी मिली है उसको रखें। ये पहली आज़ादी है आपको। मैं यहाँ बुढ़ा हो गया हूँ, तो मर जाऊँगा, लेकिन आप बताएं पाकिस्तान की कौम का एतमाद है आप पे। अब आप ये न करें कि अल्ताफ भाई फिर आ जाए, फिर फौज से समझौता हो जाए। फौज हमारी है, फौज आज से बहुत अच्छा काम कर। मैं ज़िंदगी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ज़िंदगी में आर्मी चीफ को कोई खराज अकीदत पेश करूँगा। बदकिस्मती मेरी है, मजाक नहीं कर रहा, बदकिस्मती है मेरी। मुझे चाहिए कि पाकिस्तान के सदर को प्राइम मिनिस्टर को खराज अकीदत करूँ, लेकिन आप तो आए, आप इम्पोर्टेंट हैं, आप सब इम्पोर्टेंट हैं। हमारे पास जवान जमीन का बच्चा था, मैंने से कहा मेरा बड़ा अच्छा खा गया हो। बहुत बड़ा आदमी, और ये बैठे कैसे लोगों को बुलाए। आपको चाहिए आप बरतानी की पाकिस्तानी को गलत अकीदत करें कि आपको यहाँ बुलाए और यहाँ बताएं आप पाकिस्तान के बारे में। थैंक यू वेरी मच। Thank you so very much, Sibkatullah Pakistan. So, recently I was at the Parliament attending a meeting, and not that I'm meant to be at the Parliament, like I said, I was attending a meeting, and one of the MPs came up to me and said, Natasha, do you know how amazing it is, the fact that in the last 5 years, Pakistan's literacy rate has grown by 250%. 250%. Is that not remarkable? It's not, because it's a lie. Now I hear people clapping, because this is how wrong information spreads. I have just said something. If I don't clarify it, people are going to take it back with them and tell others that, you know, in the last 5 years, Pakistan's literacy rate has increased by so much. That is not correct. In today's world of internet and media, it is not difficult for people to pick up their phones and Google the information, which is what a lot of us do.
But then a lot of us do not have access to that. It is so dependent on these people of media to come to us with the truth and nothing but the truth, without sensationalizing the news. Obviously it's ratings, obviously it's to get up there, but what we want is the truth. A lot of these people dedicate their lives to looking for truth. They dedicate their lives, their times, entire careers are spent dedicated to the truth. On this note, I would like to invite our dearest Naveen Chaudhary, President of Press Club, to kindly come up here and say a couple of words. Stick to the 2-minute rule, please, Naveen. Thank you, Natasha. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस महफिल में इतने सारे दोस्तों को, साथियों को, बुजुर्गों को देख के जितना खुश मैं हूँ, आप उसका अंदाज़ा शायद इस तरह से कर सकें कि जैसे किसी दूर दराज के गांव में रहने वाले किसी बच्चे को ईद के या मेले के मौके पे किसी शहर में ले आया जाए और फिर वो रंग बिरंगी चीज़ें और रंग बिरंगे स्टाल देख के खुश होता हो। बहुत सारे दोस्तों को शायद मेरी ये बातें अजीब लगे, लेकिन अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान कि इस साल मैं अपनी अमली जर्नलिज्म के 25वां साल मना रहा हूँ और वो लोग जिनसे मैंने पाकिस्तान में, लाहौर में रहते हुए सीखा, किन किन का नाम दूँ। रहमत अली राजी साहब जब अपने जोबन में थे, हम इनके पास बैठना फख्र महसूस करते थे। हमजद इस्लाम उनके साथ थे, इनके करीब बैठने पे ही, तब तो तस्वीर का इतना ज़माना भी नहीं था, इनके करीब बैठते जो दोबारा के बताते थे कि आज हमजद साहब के साथ बैठा हुआ। अताउल्लाह कासमी साहब थे, नौबत की बिल्डिंग में अक्सर उनके दफ्तर में बैठ के जब आर्टिकल अपना कंप्लीट किया करते थे तो उनको देख देख के खुश होते थे। मुजीबुर रहमान शामी साहब उस वक्त, मैं बात कर रहा हूँ आज से कोई 25 साल पहले की, तब एक लेजेंड शख्सियत हुआ करते थे और कहा जाता था कि ये शामी साहब जा रहे हैं। आज ये सारी शख्सियत प्रदेश में बैठ के अपने अंदर देखना, कम से कम मेरे जैसा बंदा अल्लाह ताला का इंतहाई शुक्रगुजार है। और मैं भी थोड़ी देर पहले लाल कुर्बान साहब से बात हो रही थी, तो लाल कुर्बान साहब कहने लगे कि मैं तो बहुत सारे लोगों को नहीं जानता। वो ठीक कह रहे थे कि अब जर्नलिज्म बदल गई है, अब तो लोग उन्हें जानते हैं जो टीवी पे नजर आते हैं, लेकिन हमने जिनसे सीखा, हमने जिनसे बैठ की, वो सारे अखबार के लोग थे। तो जैसे जैसे मैंने 2-4 लोगों के बारे में बता रहा था कि तब लिखे हुए एक लफ्ज़ की क्या हुकूमत हुआ करती थी, तो मेरे मुल्क के एक आला अवाम का जो मेंबर है वो इस बात से इंस्पायर हुआ करते थे कि आया पाकिस्तान में जर्नलिज्म का ये मजाक भी हुआ करता था, और मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि हुआ करता था, और वो सारे आप जैसे लोगों की वजह से हुआ करता था। आप लाइक जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तान की इज्जत थी और है, और इंशाअल्लाह ताला जब तक आप लोग कायम हैं, जब तक आप लोगों की दी हुई तालीम हम जैसे लोग आगे बुला सकते हैं, पाकिस्तान कायम रहेगा, दायम रहेगा, आबाद रहेगा इंशाअल्लाह। Thank you very much, Naveen Chaudhary, President of Pakistan Press Club, UK, and of course he's the maker and founder of the Press Club, and one of our best journalists of UK, I would say. और रहेंगे और रहेंगे मेरे ख्याल जब तक दूसरा मुबीन चौधरी नहीं आता। I would now like to ask, there's 2 people left I would like to ask,
stage and say a few words, but please make it a few words. Amanullah Sahab, उनके 2 मिनट हमेशा ज़रा लंबे हो जाते हैं. किधर है Amanullah Sahab? Political activist. No, this is not the way to introduce me. He writes splendidly. He speaks with a lot of passion. You will see in a minute. माइक बंद नहीं होगा, आप लोग सुने. मैं कह रहा अमानुल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया आप आ रहे हैं. Please 2 minutes. I just whatever I see, say I speak this. Whatever all this is going. Ladies and gentlemen, whatever language you want me to speak, I can Urdu speak. बोलिए. Because my English is certainly much ahead of most of the people sitting here. First of all, let me congratulate Mr. Mubin Rashid for his bold, fearless, and independent initiative to call this International Media Conference. My second statement is that हम सच लिखें और सच्चे लोगों के बारे में लिखें. मैं आपको 2 मिसालें देता हूं. जब एडगर स्नो ने रेड स्टार ओवर चाइना लिखा तो दुनिया में कोहराम मच गया. और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि अगर इल्म हासिल करना है तो चीन जाइए. आज आपके सामने चीन बोल रहा है, दुनिया सुन रही है. और चीन और रूस की फौजदार जो है वो मिलकर बीजिंग के अंदर जहां मैं भी गया हूं और चुए लाई से मिला हूं, वो मार्च करती है और वो कहती है कि देखो तुम ताबूत के पैदा करने वालों, ये दाइश के बनाने वालों, देखो हम मार्च कर रहे हैं ताकि अवाम जो है दुनिया से अब उठे और वो मार्च करें. यहाँ मैं ब्यूरो जब चलाता था इस्लामाबाद में, शकील अंजुम शकील साहब भी बैठे हैं, एक मिसाली ब्यूरो था. दूसरी मिसाल मैं आपको दूंगा, वियतनाम में जब तीसरी जंग जारी थी, उस वक्त जब एक छोटी सी बच्ची खेलती हुई खलिहानों में, खेतों में वियतनाम की, जब उसमें नेपथाम फेंका गया तो APRPF मुझे याद नहीं रहा कि कौन सी एजेंसी थी, उसके न्यूज एडिटर ने ये फैसला किया. उसने कहा फोटोग्राफर ही रहा, बाकी सारी तस्वीरें फेंक दी उस बच्चे के ऊपर जिसका सारा जिस्म नेपाल से जल गया था और वो बरहना होके वो दौड़ रही थी और आहट पुकार कर रही थी. न्यूज एडिटर ने जब दुनिया को तस्वीर दिखाई तो सारा अमेरिका बरहन हो. दोस्तों, ऐसी सदाकत सच के साथ में डॉलर तुम्हारी कमर में कफन नहीं बनेगा. डॉलर आपको नहीं बचाएगा. मैं तीसरा मिसाल आपको देता हूं. जापान के ऊपर जब अमेरिका ने नीडलेसली when Japan was atomic bomb, nuke, NUKED, nuke, अंगारा रहते जरा अंग्रेजी फसाद से बोलते हैं. जब उस पे बम फेंका तो अमेरिका ने कहा कि मेरी तसल्ली तो नहीं हुई, उसने दुनिया के ऊपर एक और बम मारा. वो बम था मैकार्थीज़म था कि तमाम सोशलिज्म के नाम लेने वालों का, तमाम मजदूर किसान की बात करने वालों की जुबान दुखी से खींच लो. ये था मैकार्थीज़म. तो अलीजा सच वालों का साथ दे, सच लिखे, मजलूमों का साथ दे, क्योंकि मजलूम आपकी डॉलर के साथ दिनार नहीं दे सकता. इस वक्त आखिरी मेरी बात यह है, ये अमेरिका का पैदा करता दरिंदा जिसका नाम दाइश है और किस कदर बिस्नोबत है इस्लामिक स्टेट, ये अमेरिका ने बना के दुनिया में बहुत बड़ा जुर्म किया. आखिर वही मुल्क उसको खत्म करने के लिए मैदान में आया जहां अक्टूबर रेवोल्यूशन आया. मेरे ही कदम कागज का एक शख्स अजीम लेन, उसने कहा नहीं,
बीबी बैठी हैं, शकील अंजुम साहब बैठे हैं और अपना शामिल साहब बैठे हैं। वो हमारा कोई इख्तिलाफ होगा राइट लेफ्ट का, लेकिन सच के लिए राइट लेफ्ट नहीं होता। खुदारा ये स्क्रीन पे जिसपे मीडिया मुगल ने कब्जा कर दिया है, हमारे जैसे लोगों को भी पता है। हम आगे मजदूर किसान की बात करते हैं, पाकिस्तान की अभी आपने सुना, देखा, महसूस भी किया होगा अमानुल्लाह खान साहब, जो कि हमारे लंदन में बहुत सालों से इसी तरह सबको जोश दिलाते हैं, सबको जगाते हैं और लगे रहते हैं कि कभी कभी तो ऐसा वक्त आएगा कि इनकी बात सुनी जाएगी, कि सच भी आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। I would like to now call Habib Jan Sahab बिल्कुल। Habib Jan हम सब के जान हैं, बहुत प्यारे भाई, अदा साईं जो मर्जी कहने। अगर यहाँ पे लोग कराची के लियारी से वाकिफ हैं तो जानते होंगे, he stood in the elections for Liari as well। कॉलम्स भी लिखते हैं, इनके राइटर्स फेसबुक पे भी बहुत मजे के होते हैं, तकलीफें भी होते हैं कभी। हबीब जान इस महफिल को लोगों ने पल भर में देखा होगा, कई शबें लगी होंगी मुबीन रशीद की। मीडिया कॉन्फ्रेंस भी है और इतने बड़े बड़े नाम बैठे हैं कि मुझे डर लग रहा है कि इधर इस हॉल में सुना नहीं आ जाए, जिनकी बातों से हिजान बर्पा होता हो। ब्रेकिंग न्यूज़, सच को झूठ, झूठ को सच, और पाकिस्तान की किस्मत बदलने का जो मामला चल पड़ा है उसमें मीडिया का एक बड़ा किरदार है और मैं समझता हूँ कि इस मीडिया ने वाकई बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। एक करप्ट लोगों को अब छुपने की जगह नहीं मिल रही। जहाँ अच्छी बातें हैं वहाँ की बातें ऐसी भी हैं कि हम जारी के लोगों को रो रो कर अपना दामन भिगोते हैं, शिकवा करें तो किससे करें। जरदारी साहब ने मीरा और शर्मिला फारूकी को अवार्ड देकर उन अवार्डों की इतनी बेहुरमती कर दी जब अवार्डों की कोई अहमियत नहीं रही। लेकिन जो अवार्ड आज तकसीम होंगे वो अवार्ड बहुत मेहनत और तवज्जो के बाद मुबीन रशीद ने शाम बनाई। मैं समझता हूँ कि लंदन में मेरा ख्याल था कि मुश्ताक लाशारी के बाद लंदन का क्या होगा। इस तरह माधुरी जब बुढ़िया हो रही थी तो मैं कहता था अपनी बेगम से कि माधुरी के बाद इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री का क्या होगा। तो वहाँ ऐश्वर्या राय आ गई, दिल थोड़ा सा भाग हुआ। अब यहाँ पे जो लंदन से जो लोग आए हैं, पाकिस्तान से जर्नलिस्ट साहिबान, नताशा मैं थोड़ा सा कुछ प्लीज। तो आप यकीन कीजिए मेरे मोअज़्ज़िज़ वतन के साथियों और बड़े एंकरों, यकीन कीजिए ये शाम बहुत यादगार शाम है। ये रिवायतों का अंदाज लेकर आगे बढ़ रही है। लाशारी दिल्ली की आखिरी शमा लग रहे थे और बैरिस्टर सिफतुल्लाह कादरी के घर जो महफिलें लगती थी निहारी और पाई की, वो भी दिल्ली की आखिरी शमा लगती है। अल्लाह को जिंदगी दे कि पाकिस्तान से आने वाले पॉलिटिशियन चाहे लेफ्ट के हों चाहे राइट हों, लेफ्ट के ज़्यादा होते थे, चौधरी इक़्तिदार, अमीन फ़हीम वगैरह वगैरह, इकबाल हैदर मरहूम। तो लंदन का नाम तो बहुत मैंने सुना था। जब असाइलम का मसला आया तो मैं अमेरिका जाना चाह रहा था, शहीद बीबी यहाँ आ गई तो मैंने कहा कि मादरे जमहूरियत लंदन है, वहाँ हम चलते हैं। लेकिन लंदन आकर बहुत दुख हुआ, सब फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है। कादिर साहब मैं इतना सा माजरत साहब का मैं बच्चा हूँ, थोड़ा सा प्रिविलेज दें मुझे। सोसाइटी में हमने कभी किसी को बर्दाश्त ही नहीं किया आज तक। हबीब रहमान अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे, कश्मीर के हमारे दोस्त थे, जर्नलिस्ट थे। हमराज हसन साहब को एक महफिल में बड़ा जोर का सुसु आ रहा था, कभी हमराज यूं करते कभी यूं करते। तो हबीब रहमान साहब ने अपनी गाड़ी कश्मीर में जाने का की रोला पाया, हमराज क्या कर रहे तुम? बोलते हैं शादी इंसान आ रहा है। तो उन्होंने कहा जाओ फिर करा। हमराज ने कहा मैं नहीं जाऊंगा शादी, मैं जाऊंगा तो मेरे पीछे आप आना शुरू कर देंगे।
ये हमारी फितरत है। मुबीन रशीद जब लंदन आए तो नई बात के एडिटर अताउर रहमान साहब हमारे दोस्त ने उन्होंने कहा कि मुबीन आ रहे हैं, नई बात शुरू करेंगे। इज अ पॉलिटिकल वर्कर बीइंग अ लियारी, मेरी ख्वाहिश थी कि अखबार पे अखबार आए, मीडिया पे मीडिया आए, ताकि किसी न किसी की मोनोपोली ना रहे। हमें कोई आज भी नहीं छापता, हमारा बायकाट है कि हम लियारी के लोग, और लियारी के लोगों ने पाकिस्तान को बचाने का मुकदमा लड़ा था, जिसको आप रहमान डकैत कहते थे, जिसको आप बायकाट करते थे। रहमान डकैत ने पाकिस्तान बचाने का मुकदमा लड़ा था। जिस शख्स का आज बायकाट करके आप बैठे हुए, उस शख्स ने पाकिस्तान की नाक में दम करके रखा था। सरदार उज़ैर जान, यहाँ एक एंकर मेरी दोस्त बैठी है कराची की, उन्होंने लिखा कि उज़ैर जान अयान की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। मीडिया की जिम्मेदारी में मीडिया कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी बातें मैं करूंगा। कहाँ उज़ैर, उसे आप अवार्ड देते, उसे आप तमगा देते, जिस तरह मलका ने यहाँ एक रॉबिन हुड को नाइट हुड का खिताब दिया, रॉबिन हुड को, कि उसने जमहूरियत और मलका का ताज बनाने की जदोजहद लड़ी थी। रहमान वाकई था ये कर, लेकिन खुदा की कसम पाकिस्तान के शहर को, कराची को बचाकर उसने पाकिस्तान पर एक एहसान किया था। थैंक यू वेरी मच। यकीन कीजिए आप, जब अल्ताफ के दहशतगर्द, जब उनके ब्लैक टाइगर कराची की सड़कों पे खून बहाया करते थे, किसी पठान का, किसी बलोच का, किसी सिंधी का, किसी उर्दू बोलने वाले का, तो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले कोई थे? गरीदा फारूकी साहबा, तो रहमान के लोग थे, और लियारी के लोग थे, वो उज़ैर जान था, वो जफर बलोच था, या हमारे लोग थे। और कोई टीवी कहता है कि उज़ैर पेशावर में है, कोई कहता है कोयटा में। आज मैं ऐलान करता हूं जलसे से, इस मीडिया कॉन्फ्रेंस से, उज़ैर जान बलोच दुबई में महफूज हाथों में है। कि तुम 3-3 दिन की खबरें चलाकर पाकिस्तान में हिजान बर्पा करते हो, खुदा के वास्ते ऐसा ना करो। कोई इंस्टीट्यूट बनाओ, कोई एजेंडा बनाओ, कोई पैरामीटर बनाओ, एक दिन का 1 घंटे का प्रोग्राम करके पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ। हम लंदन में रहते हैं, जमहूरियत के मजे लेते हैं। यहाँ पर मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, सारे मीडिया के लोगों से, मुबीन रशीद से दरख्वास्त करूंगा कि इन सब हमारे एंकरों को यहाँ भी किसी हॉस्पिटल में ले जाएं, आप NHS का सिस्टम दिखाएं कि जब हॉस्पिटल में जगह नहीं है तो एक लंबा सा ट्रक, जिसमें MRI होता है, उस ट्रक में MRI होता है। इनको हॉस्पिटल की जगह स्कूल में ले जाएं, कॉलेज में ले जाएं। जरदारी भी आते हैं, मियाँ साहब भी आते हैं, सब हाइड पार्क घूमते हैं, कोई हेरड जाता है, कोई इनको सिस्टम से कुछ नहीं सीखता। और यकीन कीजिए आप लोग बहुत कुछ कोशिश भी करते हैं कि मीडिया हाउसेस की भी मजबूरियाँ होती हैं, हम भी आपकी मजबूरियाँ जानते हैं, लेकिन यकीन करें ना हम दहशतगर्द थे, ना खुदा की कसम दहशतगर्द। लियारी वालों ने अपने उन गधों की भी हिफाजत की जिस पे वो मजदूरी करते थे। लोग तो आज काट कर गधों को खा जाते हैं, हम अपने गधों से भी मोहब्बत करते हैं। और मुबीन रशीद, खुदा की कसम, इस प्रोग्राम का कोई कार्ड होगा, कोई टेबल बेची होगी, हाई कमीशन या ISI को पैसे नहीं देती। हमारे लोगों ने जिससे भी दुश्मनी हो, ए बंदा ये सही रहे, उन दोनों पैसे दे दिए। खुदा की कसम, मैंने भी कार्ड नहीं खरीदा और मैं शर्मिंदा हूं, क्योंकि मैं एक गरीब मजदूर का बेटा हूं। और कुछ जिन लोगों ने भी मुबीन की हेल्प की है, वो काबिल सताइश है। मुबीन हिम्मत नहीं हारना और दुआ करना कि अल्लाह हमें कोई ऐसा कारोबार दे, और आपको कोई पैसा चाहिए गैंगवार का, तो मैं उधर से कहूँगा कि आपको भी दुआ दे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको गैंगवार का पैसा मिला। आखिर में एक दो दोस्त कहूँगा, खासतौर पर शामी साहब बैठे हैं, कासिम साहब बैठे हैं, और इस्लाम साहब बैठे हैं, वसीम साहब बैठे हैं। आपकी बातों में बड़ा दर्द और असर होता है। मेरी माँ आपको देखकर बहुत खुश होती है, मेरे बच्चे, मेरे शहर के लोग खुश होते हैं। खुदा के वास्ते सोसाइटी का नक्शा पेश करने, पाकिस्तान बहुत खतरात में गिरा हुआ है, दुश्मनों से गिरा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि आज मुबीन रशीद ने जो कोशिश की है, जिन जिन लोगों ने मुबीन की मुखालफत की है, अपनी बात की है, अनिल भाई बिलीव करें, मुबीन ने बड़ी दिल से मेहनत की है। मुबीन के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग बुरा ना माने, खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाएं, दिल से दुआएं। मुबीन ने बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह मुबीन के हिम्मत है। और ये पाकिस्तान के लिए और मुस्तक नशरी साहब
मुबीन को बहुत हौसला दिया है। मुबीन आपको मालिक के सारा तो हुआ होगा। जिंदाबाद पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। और हमारे साफी बिरादरी मिर्जा फारूक की तरफ मैंने भी गलत बात को माफ कीजिएगा, सिर्फ तस्दीक करेंगे कि हम लियारी वाले मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मिलत थैंक यू हबीब भाई। हम सब हबीब जान को हबीब भाई ही कहते हैं और आपने देख लिया हिस्ट्री। Some facts about Pakistan very quickly. Did you know that AD is running the world's largest ambulance network? Pakistan's national anthem, the tune of the national anthem ranks first in the top 3 tunes of the world. And of course, there's lots of other facts which I will let you know during the course of the evening. But first, I would like to ask Naseem Siddiqui to please take to the stage, take the mic and say a few words. If you could possibly keep it, stick to the 2-minute rule, I would appreciate it. Naseem is is the person who deals with all the correspondence for Express TV over here. And when you see news reports from London or any part of the UK on Express TV, this is the guy behind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत साथियों ने काफ़ी टाइम दे दिया, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं सिर्फ जो मेहमान ग्रामी पाकिस्तान से आए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेहर रहमान शामी साहब हैं, डॉक्टर अमजद साहब हैं, अताउर कासमी साहब हैं, अमजद इस्लाम अमजद साहब, वसी शाह साहब, हमारे प्यारे सिंगर जवान मौजूद है, रसूलुल्लाह खान साहब मौजूद है। मैं तो सिर्फ आखिर में ये कहूँगा कि ये महफिल जो आज सजी है कोई इंसान हो तो सामने आए। बहुत शुक्रिया नसीम। He made up for the length of the rest of the speeches. खैर हमारा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हम सब ने बहुत बातें कही। I'm sure you all are waiting to hear from the guests who have come from Pakistan, who have come from abroad. Like I said, this program arranged tonight by Mubin Rashid is a tribute for all the journalists and media personnel. मैं बुलाऊंगी पाकिस्तान के मशहूर शायर। He is also an actor, an anchor, सियासी person भी है, journalist. He's part of the media, big name in Pakistan. Mr. Wasi Shah, if he could come to the stage and take this program further. And along with him, if I could call Shazia Khan of Aaj TV to please take to the stage. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि अगर आपकी अहलिया के साथ कंपेटेबिलिटी ना हो तो आपकी ज़िंदगी जो है वो दोज़ख हो जाती है। और मुबीन रशीद जैसे दोस्त जो हैं वो दोज़ख में धकेलने के लिए अपना काम जो है वो कर देते हैं। उनका हुक्म था और इसलिए हम इसे टाल नहीं सकते। मैं इसीलिए यही कहूँगा कि शादिया से पहले के गुफ्तगू को आगे बढ़ाएँ। अगर हम इसको वैसे तो सारे सीनियर्स हैं जब आने वाले हैं और सियासी से ज़्यादा जो लाजवाब है मुख्तलिफ ख्याल लोग जो हैं यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। पाकिस्तान में जितनी पार्टीज पाई जाती हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, ANP है, दीगर सब के चाहने वाले यहाँ बैठे होंगे। तो फिर गज़ल और जवाबा गज़ल का एक ऐसा सिलसिला शुरू होगा कि जिस पे गुफ्तगू जो है वो कहीं कहीं चली जाएगी। तो बेहतर ये है अगर आप सीनियर्स मुनासिब समझे दूसरे जो आगे तशरीफ़ फरमाए यहाँ कि हम मीडिया की अफादियत जो डेवलपमेंट पिछले 10-15 साल में मीडिया में हुई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, फिर मीडिया की जो फाइट मुख्तलिफ जो माशाअल्लाह रहे 2-3 हमारे यहाँ, तो हमारे जो प्रिंट मीडिया ही हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता था। प्रिंट मीडिया के हमारे जो जर्नलिस्ट थे जिनमें से बहुत सारे लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इन्होंने किस तरीके से उस वक्त माशाअल्लाह के ख़िलाफ़ खड़े रहे, किस तरीके से अपना रास्ता बनाया, किस तरीके से सहूलतें बर्दाश्त की, कुछ हम में है कुछ हम में नहीं है, उसमें से क्या कुछ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ट्रांसफ़र किया है और क्या कुछ हमारे सीनियर समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ट्रांसफ़र होना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर हम इसके ऊपर रख के चलेंगे तो ज़्यादा फोकस रहेंगे और जब ये कॉन्फ्रेंस खत्म होगी तो लाज़िम बात है कुछ ना कुछ
جیسے کہتے ہیں نا کہ سیر حاصل کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور ہمیں لگے گا کہ ایک آدھ اسٹیپ جو ہے وہ شاید ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور اگر سیاسی گفتگو ہوگی تو پھر اسے سمیٹنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. اور مبین یقیناً بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ ہستیاں جنہیں پاکستان میں بھی دیکھنا مشکل ہوتا ہے ان کی مصروفیات کے باعث انہوں نے یہاں انہیں اکٹھا کیا ہے, چاہے وہ کراچی سے تشریف لانے والے ملک بریلی ہوں, ہمارے حنیف احمد ہوں, یا قاسم صاحب ہوں, عمر صاحب ہوں, سرگنی راؤ ہیں, بے شمار احباب ہیں. میں نام لینا شروع کروں گا راضی صاحب سے لے کر شامی صاحب تک. اور پھر ابو اور میں سمجھتا ہوں کہ امجد ثاقب صاحب یہاں بیٹھے ہیں, اور امجد ثاقب صاحب نے نہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کی ہے بلکہ ایک اعتبار جو ہے وہ پاکستانی سوسائٹی میں قائم کیا ہے. جب ہم بلائیں گے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بیشتر لوگ آگاہ ہیں کہ یہ قرض حسنہ کا ایک ایسا پروگرام چلاتے ہیں جس کی واپسی جو ہے وہ تقریباً 100% ہے. اس کے سائز پہ مت جائیے, وہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ ہماری سوسائٹی جس کے اوپر ایک الزام یہ لگتا ہے کہ ہمارا ہر طبقہ جو کرپٹ ہے اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جو 100% بغیر کسی پریشر کے آپ کو رقم جو ہے وہ واپس کرتے ہیں. یہی اصل پاکستان ہے, یہی وہ پاکستان ہے جس کو ہم نے آگے لے کر بڑھنا ہے. وہ ٹوشا السلام علیکم. اور اتنا کچھ وسیلے کہتے ہیں, باقی میرے تمام معزز مہمانوں نے بھی بات کی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنی طاقت سچ میں ہے میرا خیال ہے کسی چیز میں نہیں ہے. اور اگر بات کی جائے پرنٹ میڈیا کی, اس کے بعد کی جائے الیکٹرانک میڈیا کی, تو سچ کا سر بلند بھی کیا ہے. اگر یہ بھی کہا جائے کہ جمہوریت کا سر سلامت رکھا ہے تو غلط نہ ہوگا میڈیا نے. اگر یہ کہا جائے کہ کرپٹ لوگوں کو سامنے لے کر آئے تو وہ بھی غلط نہ ہوگا. ایک گھر میں ایک عورت جلتی ہے تو میڈیا اس کی کوریج بھی کرتا ہے. میڈیا یہ بھی بتاتا ہے کہ آٹا مہنگا ہو گیا ہے. میڈیا یہ بھی بتاتا ہے کہ توانائی بحران ہے. لیکن میڈیا کے کچھ نیگیٹو امپیکٹس بھی پڑے ہیں جس میں ہماری ویلیوز, ہمارا کلچر پیچھے چلا گیا ہے. بہت سارے لوگ ایسے, بہت ساری باتیں ایسی ہیں. صرف شارٹلی یہ کہوں گی کہ بتائے لو قلم چھن گیا تو کیا غم ہے کہ ہونے دل میں ڈبولی ہے انگلیاں میں نے. تو یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور باری باری آئیں گے. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہنے کو, سننے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے. جو لسٹ مجھے فراہم کی گئی ہے, تو اگر اس میں بھائی کہیں کوئی گلا ہو یا کوئی آدمی اس لسٹ کی جس ترتیب سے بلایا جائے گا, اس کے بلائے جانے پہ اگر بعد میں تشدد میں مائل نظر آئے تو سارا تشدد جو ہے مبین رشید صاحب پہ آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ لسٹ جو ہے مجھے انہوں نے فراہم کیا ہے, جیسے جیسے مجھے انہوں نے کہا ہے ویسے ویسے میں بلا دوں گا. اس کی ابتدا بس یہ آپ سے کر لیتے ہیں نا. ہاں نہیں, میرے پاس یہی آس ہے کافی میرے سینے میں, آپ ہی کے شعر ہیں. ہاں, دوسرا مسئلہ ہے دل نہیں آپ دھڑکتے ہیں جیسے سینے میں. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دلوں میں دھڑک رہے اور وسیع کو باری باری بلائیں گے. میں پی ایف یو کے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, بہت ہی محبوب شخصیت ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ انہیں صحافیوں کے حق میں بولتے ہوئے دیکھا ہے, ہمیشہ صحافیوں کے ساتھ کھڑے دیکھا ہے. اور ان صحافیوں کے ساتھ جو جنرلی صحافی برادری کا سرمایہ ہے, جو جنرلی صحافی برادری کی آپ سمجھیے کہ جو اصل ہے, جو روح ہے, وہ صحافی جس کے پاس آج بھی اتنی سہولت اور اتنا پیسہ نہیں ہوتا جتنے ہمارے ٹاپ براس کے جو ہمارے اینکرز ہیں ان کے پاس ہوتا ہے, جس کے دم سے صحافت کا اعتبار قائم ہے, ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے نظر آتے ہیں. پی ایف یو کے پریزیڈنٹ ہیں محترم افضل بٹ صاحب, تشریف لائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے میزبان اور آج کی اس عظیم الشان میڈیا کانفرنس کے انعقاد کے یک رکنی, میں یہ کمیٹی بھی تھے, چیئرمین بھی تھے, ممبر بھی تھے, اپنے بھائی مبین رشید کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تمام تر منفی پراپیگنڈے کا مقابلہ کرتے ہوئے آج اس شاندار کانفرنس کا انعقاد کیا. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پاکستان بھر سے آئے ہوئے اہل قلم کی جانب سے صبغت اللہ قاضی صاحب سمیت
तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आज जिस आज़ादी का जिक्र कादरी साहब ने किया अपनी स्पीच में, इससे पहले पाकिस्तान से जितने लोग आते थे, कभी जमहूरियत की बहाली की बात होती थी, कभी मीडिया की आज़ादी की तहरीक होती थी, और कभी चीफ जस्टिस की बहाली की तहरीक होती थी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये आज़ादियाँ दिलाने में ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो रोल है उसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। लेकिन आज जिस आज़ादी की हम बात करने के लिए आपके पास खड़े हुए हैं, वो शायद बहुत मुश्किल तहरीक है। इससे पहले क्या था, कड़वी बात होगी शायद, क्या आज से 10-15 साल कबल परवेज़ मुशर्रफ के दौर तक की बात करूंगा, शायद पाकिस्तान में समझा जाता था कि मीडिया की आज़ादी को सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से खतरा है। और मैं पूरे दावे से कहता हूं कि परवेज़ मुशर्रफ की रुश्दी के साथ ही हमने काफी हद तक वो आज़ादी हासिल कर ली थी। लेकिन अब हमें जिन पाबंदियों का सामना है, उनको शायद आप लोग महसूस नहीं करते होंगे। सबसे ज्यादा अक्सर मैं कहता हूं आज मीडिया की आज़ादी को स्टेट से नहीं, सेठ से खतरा है। जो मीडिया चैनल के मालकान हैं, जो अखबारात के मालकान हैं, उनसे सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत को है। शायद पाकिस्तान में फौज के खिलाफ बात करना आसान हो, ISI के खिलाफ बात करना आसान हो, वजीर आजम और सदर को आपके घर की लौड़ी है जो मर्जी कहते रहे, सियासतदानों का जिस तरह मर्जी मजाक उड़ाते रहे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। मगर एक पानी की बोतल, उसमें आप जहर भरकर पूरे मुल्क में फरोख्त कर दें, 10 करोड़ का जहर बेचे, 1 करोड़ के इश्तिहार आप चैनल और अखबार को जारी कर दें, उस जहर बेचने वाले के खिलाफ एक सिंगल खबर कालम खबर शाया नहीं हो सकती। इसलिए दूसरा खतरा पाकिस्तान की उन सियासी जमातों को जिनके मिलिटेंट विंग कायम है, उनसे है। चाहे वो मजहबी जमातें हों, लसानी जमातें हों या सियासी जमातें हों, उनके डबल फेसेस हैं। एक फेस वो जो सियासी जमातों से बात करने के लिए आता है, एक फेस वो जो टॉक शोज में आकर अखलाक की और असूलों की बात करता है। दूसरा फेस वो है जो कराची से लेकर खैबर तक, वजीरिस्तान से लेकर बलोचिस्तान तक टेलीफोन के जरिए मीडिया को कंट्रोल करता है कि हमें पता है कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, हमें पता है कि आप रात को किस वक्त घर जाते हो, हमें पता है कि आप सुबह घर से कैसे निकलते हो। इसलिए ये जंग बहुत मुश्किल जंग है कि जब इस्टेब्लिशमेंट की हम बात करते थे, फौज की जानिब से मीडिया पर पाबंदियों की बात करते थे,
हमारे सपोर्टर होते थे, बाद लोग हमारी मोहब्बत में नहीं अपने मफाद की खातिर हमें सपोर्ट कर दिया करते थे। लेकिन अब मैं अक्सर कहता हूँ कि मालकान अब माफिया की सूरत इख्तियार कर चुके हैं और कोई पॉलिटिकल पार्टी अब उसमें हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं होती। ये जिनके अदालियां आप पढ़ते हैं, वो जो जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक की तलकीन करते हैं, जो आईन और जमहूरियत का दर्ज देते हैं, आप उनके इदारों में झांक कर देखें। अक्सर पाकिस्तान में लोग रोज एरिया, पाकिस्तान के चैनल और पाकिस्तान के अखबार के दफ्तर हैं, जहां कानून के जो उनके मुतल्लिका कवानीन हैं, मैं लेबर लॉज की बात कर रहा हूं, कि जहां पाकिस्तान के किसी एक कानून का इतलाक नहीं हो सकता। और मैं अफसोस से कहूंगा कि जब पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इसके मुतल्लिक आवाज उठाती है, तो पाकिस्तान की आला अदलिया, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मालकान के साथ गठजोड़ कर लेती है कि हम आपकी चोरियां छुपाएंगे, आप हमारे जराइम पर हाथ न डालें। महाराज पीएफ मीडिया ने जहां इतनी बड़ी जंग लड़ी, आज फिर अपनी हिम्मत और बिसात के मुताबिक हम मीडिया को ये आज़ादी दिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद रखता हूं कि जिस तरह आपने माजी में आज़ादी सहाफत के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी के लिए पाकिस्तानी कौम का साथ दिया, आप इस मौका भी साथ देंगे। क्योंकि कारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपनी डगर पर आ रहा है। पाकिस्तान अब पटरी पर आ चुका है। आप भी मुतालबा करते थे, हम भी मुतालबा करते थे कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो। फौज डरती थी कि हमने ऑपरेशन शुरू किया तो सियासतदान टांगे खींच लेंगे। हुकूमत डरती थी कि हमने ऑपरेशन शुरू किया तो आईएसआई हमारे खिलाफ नाबूद शुरू कर देगी। मैं खुल के बात कर रहा हूँ। लेकिन सारे पेशावर के बाद आज पाकिस्तान की पूरी कौम कम दहशतगर्दों के खिलाफ सेम पेज पर है और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला था। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अब इस बात पर पहुंच चुकी है कि इस मुल्क में या दहशतगर्द रहेंगे या हम रहेंगे और यही हमारी कामयाबी का राह होगा। थैंक यू। बड़ा मुश्किल होता है इतना सच बोलना। बात की उन्होंने ज़राए अब्लाग की आज़ादी के, तो सिर्फ इंसान की फिक्री आज़ादी से लेकर ज़राए अब्लाग की आज़ादी तक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आज़ादी। आज़ादी का बहुत ज़्यादा नाजायज़ इस्तेमाल मीडिया ने किया। मैं चाहूँगा कि इस सारे सवालों यही जो मैं शामी साहब के पास गया था और कासिम साहब के पास, तो यही इन्होंने भी फरमाया कि जो गुफ्तगू है उसको हम मीडिया ही के ऊपर रखें और उसी के अंदर से एक सवाल ही पैदा होता है कि क्या आज़ादी का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया या भरपूर इस्तेमाल किया गया और बिल्कुल दुरुस्त इस्तेमाल किया गया। यही फोकस गुफ्तगू होगी जैसे कि भट्ट साहब से की। तो में अगर बात की जाए तो इखलाक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर मीडिया के लिए ज़ाब्ता इखलाक बना दिया जाता तो वो सर पर घोड़े की तरह दौड़ेगा लगा रहा होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अहम बात यह है कि ज़ाब्ता इखलाक जो है वो लाज़िम बात है कि जो कम्युनिटी के लोग हैं वही बनाए, सबसे बेहतर बात है। और मैं ऐसे लोगों में भट्ट साहब बात कर रहे थे ना माफिया से, तो मुझे याद आ रहा था जॉन भाई का शेर कि बोलते क्यों नहीं मेरे हक में। वैसे तो सभी बोलते हैं लेकिन बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए ज़ुबान पे क्या। तो वो मौके जिन पे आबले पड़ते हैं ज़ुबान पे, लुत्फ तब आता है जब उन मौक़ों पे आदमी बोले या उन मौज़ूआत पे बोले जैसे भट्ट साहब बोलते हैं। ठीक है जी, वक्त का मैं मुकाबला सकते गेस्ट को
हमारी एक एंकर पर्सन है महानूर अली, बिजनेस प्लस में करंट अफेयर का प्रोग्राम करती हैं। मैं चाहूँगी कि वो आए और यहाँ पर आकर कुछ मीडिया के बारे में बात करें। महानूर, अच्छा महानूर अली यहीं पर थी और नेक्स्ट गेस्ट को बुलाते हैं। नेक्स्ट गेस्ट ठीक है, हम नेक्स्ट गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। और मैं चाहूँगा कि जब हमारे सीनियर्स आएँ तो ये जो मीडिया के ज़ाब्ते अखलाक की बात होती है, इसके ऊपर भी ज़रूर रोशनी डालें कि आप लोग इसको कैसे देखते हैं। इसके ऊपर भी ज़रूर रोशनी डालें कि रेटिंग जो है ये कितना नुकसान पहुँचाती है, ये कितना फ़ायदा पहुँचाती है। इसके ऊपर भी ज़रूर रोशनी डालें कि रेटिंग की वजह से, रेटिंग के दबाव में आके ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम जो सोसाइटी को आगे लेकर जा सकते थे, सोसाइटी को आमद दे सकते थे, वो बंद हो गए सिर्फ इसलिए कि उनकी रेटिंग नहीं आती। ये कैसे तय होगा, ये भी बड़ा अहम मसला है मेरे ख्याल में आने और एक और चीज़ जो ट्रेंड सेटर बन चुका है मीडिया का, मतलब एक आम आदमी की मलबूसात से लेके उसकी सोच पर जो असरात पड़ते हैं मीडिया के, उस पर भी रोशनी डालें कि हम ट्रेंड सेटर को किस तरह रखें। उसमें जो ख़वातीन आएंगी तो उनसे कहना लग रहा है खरीदा सकेंगे, खासतौर पर इस पर रोशनी डालें। और नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे दोस्त हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे दोस्त हैं, सरगोजा से ताल्लुक़ है। मैं चाहूँगा कि रेटिंग के हवाले से ये भी बात करें, जो कि डायरेक्टर न्यूज़ और करंट अफेयर हैं आज के लिए न्यू टेलीविजन पे, कि रेटिंग कितना डिस्टर्ब करती है। जब रेटिंग का चार्ट आता है इनके सामने तो ऊपर अगर हो तो नसरुल्लाह मलिक साहब की क्या कैफियत होती है, और अगर वो जो रेड लाइन कहीं नीचे आ रही हो तो फिर मलिक साहब का क्या होता है, ज़रा दस्सिए साहब। देखिए, बुनियादी तौर पर जो मैं इतना लंबा सफ़र करके दो बातें करने आया था। एक तो ये मुबीर रशीद साहब ने और आप कैसे लोगों ने जो बदल मुकीम पाकिस्तान के मीडिया के लोगों के लिए, साथियों के लिए आज इस तकरीब का इस्तेमाल किया है, ये काबिल तहसीन भी है और एक जुर्माना काम भी है। तो जब यहाँ पे आया तो मुझे ये एहसास हुआ कि हम शायद जो पाकिस्तान में काम करते हैं वो यहाँ भी करने से बात नहीं है। बहुत से दोस्तों ने मुबीर रशीद साहब को भी रास्ते रोकने की कोशिश की, रोड़े हटाने की कोशिश की, और आज के दिन जब तकलीफ जारी थी उस वक्त तक मुहैया की जा रही थी कि मुझे तकलीफ होती की है कि नहीं। तो मैं समझता हूँ मुबीर रशीद साहब हमारे छोटे भाई भी हैं, उनकी कामों को हमें ज़रूर तस्वीर पेश करना चाहिए। दूसरी गुजारिश कि जो यहाँ रेटिंग की बात अभी शाह साहब ने की, मीडिया की जो मीडिया की जिम्मेदारी हो सकती है और किरदार हो सकता है, उस पर बात की गई। और भट्ट साहब ने बड़ी तफसील के साथ PFU के किरदार की बात की और मीडिया की तंजीमें उनकी बात की। तो मैं समझता हूँ कि जो एक जुमला वो कह के शायद आज की बात का निचोड़ था, उन्होंने कहा कि मालकान एक माफिया की सूरत इख्तियार कर गए हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं कहता हूँ सिर्फ मालकान नहीं, हम सब एक माफिया के रूप उतार चुके हैं। उस पर गुजारिश क्या है, कभी कभी मुझे मालकान कहीं मजलूम नजर आते हैं, कहीं जालिम नजर आते हैं, कहीं वो घुस बैठिए जर्नलिज्म में आने वाले जो आज टीवी स्क्रीन पे बैठ के बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हैं, कहीं वो जालिम नजर आते हैं, और कहीं मीडिया के अंदर छुपे हुए वो हमारी काली भेड़े जो मीडिया के माध्यम में बदमाश गुवारदार हैं, कभी आपको वो माफिया की शक्ल नजर आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जुर्म किसी एक इदारे या किसी फर्द का नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है कि जो जिम्मेदारी